really an amazing thing to share the word of God amongst the people of God. And I think this is the first time that I'm sharing the word over here. आमीन। और बहुत ही अद्भुत बात है प्रभु का वचन प्रभु के लोगों के बीच में बांटना, और भाई का ये पहला अवसर यहाँ पे। And really it's like I really thank God for this time and moment. और प्रभु को वो धन्यवाद देना चाहते हैं बस वक्त के लिए। And thank for the pastors also and the prayer warriors who are always behind prayer. Their prayers are always behind me, encouraging me to go ahead. और धन्यवाद देते हैं कि पासवान के लिए और जो हमारी मध्यस्थी की सेवकाई है जो भाई को हमेशा उत्तेजित करती है और प्रार्थना में पकड़ा रखती है। Let us turn our Bibles to John 5:1-13. We will not read it. और यूहन्ना 5:1-13 हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, but we'll just open it and as the time comes we'll have few of the verses of it. और जैसे भाई बताएंगे उस समय हम उस अध्याय से वो वचन पढ़ेंगे। I think so everyone knows this incident that took place. और ये सब जानते हैं उस समय ये बात क्या हुई थी। One lame person was lying over there in Bethsaida. और एक जो लंगड़ा आदमी था वो बेथसेदा के पुल के पास वो वहाँ पे बैठा था 38 years. 38 साल। And he was just waiting for his time to come. और वो अपना समय आने के लिए रुका था। And Jesus comes. और जब यीशु मसीह वहाँ आते हैं and he heals him. और प्रभु आके चंगाई देता है। So this is the basic story of this complete chapter, the 1-13 chapter. और ये पूरे सारांश है यूहन्ना 4:1-13 का। So now in this chapter we see only two characters. One is Jesus and one is this lame man. और ये अध्याय में हम दो चरित्र देखते हैं, एक है यीशु मसीह और दूसरा है वो लंगड़ा आदमी। And if we see the background of Jesus came to Jerusalem for a feast, for some celebration. और अगर हम उसके पहले देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर एक त्योहार के लिए आए थे, कुछ खुशी मनाने के लिए आए थे। And it was a Sabbath day. और वो इतवार का दिन था। And instead of going to the temple or that festive place, और प्रभु मसीह वो मंदिर या उस त्योहार की जगह के जाने के बजाय he comes at this place near Bethsaida, the pool in Bethsaida. तो लेकिन इस पानी के जगह ये जो पूल है उस जगह पर आते हैं बेथसेदा के पास, which is just near this sheep gate. और एक शीप गेट के लिए भेड़ी का जो दरवाजा है वहाँ पे है वो। And so this is the background of Jesus. Instead of he going to that festive season place or celebration place, he enters in this place. एक जो है पिछला सारांश है कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर या उस त्योहार के जगह के जाने के बजाय इस जगह पर आता है जहाँ पे बेथसेदा पूल है, वो पानी की जगह पे आता है। Right? And then there's the lame person. और ये लंगड़ा आदमी वहाँ पे है who has been staying over there, lying over there helplessly for last 38 years. और ये अपाहिज व्यक्ति जो पिछले 38 साल से वहाँ पे वो बैठा है, सोया है और हताश है कि कोई भी उसके लिए नहीं है। And the Bible says there were 5 covered porches. और वहाँ पे यहाँ पे बाइबल लिखती है कि ऐसे 5 स्तर थे वहाँ पे जो ढके हुए थे। And there were many, not only this lame man, but there were other people who were blind, sick, and all sorts of people. और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीमार और व्यंग लोग थे जहाँ वो जगह पे रुके हुए थे। Now, if you see this lame person, his situation was that he was lame, but there is a reason, there is a background for this, why he was lame. और वो ये आदमी जो अपाहिज था, जो लंगड़ा था, लूला था, उसके लिए एक कारण था। Yeah. So verse 14 says that when he met Jesus in the synagogue or temple,
Jesus told him, now onwards, don't sin. और जब भी प्रभु यीशु मसीह उसको मिले उस मंदिर में, तो उन्होंने एक अपने मुंह से एक शब्द निकाला उसके लिए कि अभी आप पाप मत करिए। So the reason of his he being a lame was that he was a sinner. He had sinned, or somehow or the other, which is not been given, but he had sinned. लेकिन तो इसका मतलब है वो कारण उसके पाप का दिया नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि इस आदमी ने पाप किया था। Friends, many a times we are in situation because of our sins only. और भाई और बहनों, बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में आते हैं क्योंकि हमारे पाप के द्वारा ही है। हमने कुछ बात का पाप किया है। It's not every time like, we pray, why me, why this situation, but we fail to understand that why this situation came into my life. और हमेशा हम ये कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे से क्यों ऐसा हुआ, मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, लेकिन ये बात पर हम गौर नहीं करते हैं कि हमारे हाथ से क्या पाप हुआ है। And that sin does not mean only that we do a dacoit or we do something, but many a times even if we take a wrong decision, we are into a wrong company, that might also land up us in trouble. और कभी कभी ऐसे नहीं है, पाप का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि हमने कुछ चोरी की है, हमने कुछ झूठ बोला है, लेकिन कभी कभी हमारे ऐसे निर्णय होते हैं जिसके द्वारा हम पाप में गिर जाते हैं। The second thing of this background of this person is he was a Jew. और दूसरी बात, ये व्यक्ति का एक यहूदी व्यक्ति था। Because immediately after he got healed, he immediately went to that celebration or he went to the church or the temple. और हम देखते जैसे ही उसको तुरंत चंगाई मिली, वो उस त्योहार के जगह पे या उस मंदिर पे में गया। Okay. So he was a Jew and he was a believer, sort of a believer. और वो यहूदी था, एक प्रकार का विश्वासी था। Now, see the situation is, he's been lying over there for the last 30 years, along with all the people who were around him were all sick. और हम देखते माहौल भी कैसा था कि पिछले 38 साल से वो उस जगह पर पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, और उसके इर्द गिर्द भी सब बीमारी लोग थे। See, so he was sort of in a comfort zone, I have been lying over here for last 30 years, all my people around me are sick, so I am also sick. और वो ऐसी ही उसकी सोच या विचार धारणा ऐसी हुई थी कि हाँ, मैं भी बीमार हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी बीमारी लोग हैं, कुछ अलग उसको नहीं लग रहा था। Right? So, and I hope so he might be the captain or sort of the sort of thing, because he's been lying over there for many years and people go and come, so he might be the founder member of that particular thing. और उसका एक वहाँ पे उसने स्थान भी बनाया रहेगा, क्योंकि 38 साल से उसकी जगह तो नहीं बदली है, लेकिन बाकी के लोग आए या गए तो उसने अपना एक हौदा भी उधर बना लिया था। So he was in a comfort zone. और वो एक अच्छे आरामदायक जगह पर बैठा था। He must be counseling other people also. और वो किसी जो आते रहेंगे समस्या में, उनसे भी वार्तालाप करता रहेगा। But what about his situation? लेकिन उसकी खुद की परिस्थिति He was the same. वही हालत में था। Now, can you imagine this person lying over there for last 30 years, 456 months, 13,680 days. और अब एक उसका जो रिपोर्ट हम देखेंगे कि इतने 456 दिन वहाँ पे बैठा था वहाँ पे, और इतना लंबा समय तक वो वहाँ पे उस जगह पर अपना स्थान करके रखा था उसने। Now, when he was in this so many days, imagine 456 months, 13,680 days, he was totally away from church. और 456 महीने और 13,000 से भी अधिक दिन अपने घर को छोड़कर इस जगह पर वो स्थान
लेके बैठा था, away from the believers, away from the friends, away from the relatives. सब No one was at all. सब लोगों से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने मित्रों से दूर, अपने जो रिश्तेदार है उनसे दूर, सब लोगों से वो दूर था। Right? Considering, like, as the Bible says, 80 years is your age on an average. So all 38 years means almost 50% of his age he was away from the people, from believers. हम देखते हैं, अगर प्रभु का वचन कहते कि अगर प्रभु ने हमें आयु दी है तो 70 या 80 साल की आयु हो सकती है। तो अगर 80 साल हमने देखा भी तो उसमें से अगर 38 साल हमने माइनस किए तो हम देखते हैं कि 50% उसका जीवन है जो इस जगह पर ही गया है। Friends, if we evaluate our life, many a times, if we are in problems, we are always go away from our believers, church. We just get away from all these things. When situation comes, we just get away from all these churches. अगर हम देखते हैं हमारे खुद के जीवन में भी अगर कुछ समस्या है, अगर कुछ बीमारी है, कुछ हमारे जीवन में हुआ है, तो हम देखते हैं हम भी हमारे खुद को हमारे कलीसिया से, विश्वासी भाई और बहनों से, हमारे रिश्तेदारों से हम खुद को अलग करते हैं। Why? Because we are just like this man sitting in that ditch without any, in comfort zone. We like to people coming us, pampering us. और हम भी उस गड्ढे में अपने आप को डाले हुए हैं और सहानुभूति हम चाहते हैं कि लोग आए, हमको सराहे, हमारी पूछताछ करना चाहिए उन्होंने। If we are sick, people come, pray us, pamper us, say good thing about us. अगर हम बीमार हैं तो लोग आते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमसे अच्छी बात करते हैं। If we are in a financial crunch, people say, "Oh, you are in financial crunch." So it boosts us. Oh, I am really in great trouble. और कभी कभी आर्थिक परिस्थिति को भी लेके अगर हम बैठते हैं तो जब लोग पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति क्यों में इशू है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी परिस्थिति लोगों को भी समझ में आ रही है करके, और हमको उससे भी हम खुश हो जाते हैं कभी कभी। But how long are we going to stay in that ditch? Like this person, 38 years still lying over there. और फिर हमारी परिस्थिति लेके हम कितने साल बैठने वाले हैं। जिस तरह से ये जो बीमार लंगड़ा आदमी 38 साल उस बेशदवा पुल के पास बैठे थे। Now in this it's written, there was a solution. Like the water was there. The angels used to come. They used to just shake the water, and the person who gets into that pool used to get relief. और उस जगह पर जवाब था, क्या जवाब था? वो पानी था, उस पानी में एक दूध हर साल आता था, उस पानी को हिलाता था, और जब लोग उसके अंदर जाते थे वो चंगाई पाते थे। ये सब प्रावधान उस जगह पर था। So he must be testifying many people getting into it and getting relief. और ये उसके आंखों से इस साक्ष्य भी वो देखता है और अनुभव भी करता है सालों साल कि लोग आते हैं, पानी में जाते हैं, पानी के बाहर आके चंगाई भी पाते हैं। And he used to praise God. He must be clapping. He must be saying praise the Lord with all those people who are enjoying that moment. और जब कोई भी चंगाई लेके बाहर आता था तो उनको भी उत्तेजित करने के लिए वो स्तुति, आराधना सब करता रहेगा वहाँ पे। Same our condition is. We are also in sort of the same condition. But every Sunday we hear testimonies, people testifying it. But what is our condition? हमारी भी हालत वैसी है कि बहुत साक्ष्य हम सुनते रहेंगे, हम प्रभु ने किए हुए चिन्ह चमत्कार के बारे में, लेकिन अगर हम खुद के जीवन को जांचेंगे तो हमारी परिस्थिति क्या है? We are not changed. Only the surrounding is changed. People, we hear so many testimonies. I am really glad in this church at least you say on an average
4 testimonies are always in every Sunday. और हम देखते हैं हमारी कलीसिया में एवरेज में सारांश देखेंगे तो हर इतवार को एक 4 साक्ष्य तो आती है, होता ही होता है. वो आती है. And we just say, we clap our hand, we say praise the Lord. But have we, taken that testimony and just saying, no, if that can happen to him, why not me? और ये साक्ष्य सुन के हम इतने उत्तेजित होते हैं कि अगर प्रभु इस भाई और इस बहन के साथ ऐसा चमत्कार कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं. If God can heal that auntie, if God can heal that uncle, why not me? अगर प्रभु उस अंकल आंटी को चंगाई देता है तो मुझे क्यों नहीं. But then Satan again comes to you and says, और फिर शैतान धीरे से आके हमारे कान में क्या कहता है, it is for them. उनके लिए है, God is with them. प्रभु उनके साथ है. You are away from God. आप प्रभु के से दूर हट गए He हैं. takes you away from that reality that you can also be healed. तो ये शैतान आके वो हमें बताता है कि हम प्रभु के सानिध्य से दूर है. ये सच्चाई हमें वो बताता है. Why do you want that relief? See, people are with you. People always call you up. People always say good about you. आप ऐसा भी कहता है कि आप उनकी तरह क्यों चाहिए. लोग आपको फोन करते हैं, आपके साथ हैं, आपके बारे में अच्छा बात भी करते हैं. In your sickness, they just say, "Oh, you will be very good." और अब जब बीमार है तो बोलते हैं आप चंगे हो जाएंगे, अच्छे रहो. So we are also comfortable. Like people are pampering us, so we are just comfortable in that comfort zone. और ऐसे बातें सुन के हमको भी अच्छा लगता है और हमको वही परिस्थिति में रहने को भी अच्छा लगता है. No, people of God. ये सही बात है परमेश्वर के लोग. This is a very wrong thing, and Satan wants us to stay in that ditch for more than complete of our life. और ऐसे गड्ढे में शैतान चाहता है पूरी जिंदगी वहाँ पे बिताए. Now see, this lame man is in that situation, ये लुल्ला आदमी जो ऐसी परिस्थिति में है, and he has a solution in front of him. उसके सामने तो एक जवाब भी है. He has only one solution with him. एक ही जवाब है उसके लिए. That he wants, and it's totally in his mind that once I go into that pool, और उसके दिमाग में भी वही है कि एक बार मैं उस पानी में जाऊंगा so I'll be completely healed. तो मैं पूरी तरह से चंगाई पाऊंगा. There is no other solution for my problems. इसके अलावा मेरे समस्या के लिए कुछ भी उत्तर नहीं है. Only this situation, this solution is the solution. यही एक उसका उत्तर है. If I am sick, मैं बीमार हूँ, doctor says there is an operation, अगर डॉक्टर कहता ऑपरेशन है, then operation is the only solution for my problem. फिर ऑपरेशन ही मेरे छुटकारा का एक ही कारण है, मेरा ऑपरेशन. Then my prayers also start around it. फिर मेरी प्रार्थना भी वैसी होती है. I need a good doctor. मुझे अच्छा डॉक्टर दो, I need a good hospital. अच्छा हॉस्पिटल दो, My operation should be very good. मेरा ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, My finances also should be very, to match with that operation and everything. और मेरी आर्थिक परिस्थिति भी उस ऑपरेशन के लिए ठीक होनी चाहिए. I have a financial crunch. मैं अभी आर्थिक परिस्थिति में मेरा विकट है. I need a job of this particular bracket, salary bracket. और मेरे को इतने पैसे की तनख्वाह चाहिए. And this is the only solution for my problem. और यही मेरे लिए यही एक उत्तर रहने वाला है. I have a sickness. मेरे पास बीमारी है. Marriage of my daughter and son is the only solution for my sickness. और जब तक मेरे बेटे और बेटी की शादी नहीं होती है वो ही मेरे लिए ठीक करने वाले हैं. And all my prayers, all my search, all my everything goes in that direction. और सब मेरी प्रार्थना उसी तरह की बनती है. Friends, we are totally focused on the solutions that our limited brains, our limited knowledge, our relatives, our doctors, they just show us everything. और हमारे जो दिमाग भी उसी तरह चलता है जो हमें जवाब चाहिए कि अगर ऐसा होगा
वैसा होएगा तो ही मेरे को अच्छा लगेगा, तो ही मेरे को जवाब मिलेगा। अगर मेरे और ये हमारे जो विचार है वो हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे जो पगार है उसकी ओर ही वो घूमते हैं। And Satan also takes us in, keeps us in that vicious circle. That this is the circle. You have to be in this circle. Your prayers, your fasting, your meditation, everything is limited to this circle. और शैतान भी हमें उसी जाली में रखता है कि बाबा तुम्हारा उपास प्रार्थना ऐसा चाहिए, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी, और वही जो गोल गोल घूमना है उसी हमारी सोच में वो हमें रखता है। And we are not out of that solution for years together also. और सालों साल हम वैसे ही परिस्थिति में रहते हैं और कोई छुटकारा नहीं मिलता है। And God seeing from up, He's laughing. Hey, this is not the solution. Why are you just going behind that solution? और प्रभु ऊपर से देख के हमारे के ऊपर हंसता भी रहेगा कि यही खाली एक ही मार्ग नहीं है और दूसरे भी अनेक मार्ग है करके। And we are just going in that solution. And then on top of that, what we have is, why God? I've been fasting for so many days. I've been praying for so many days. This pastor is praying for me. This church group is praying for me, but nothing is happening. और हम ये भी कहते हैं, प्रभु कितने दिन से उपास प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया मेरे लिए दुआ कर रही है, पासवान मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा? Friends, we have to come out of this vicious circle. प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस जो गोल गोल हमारे जो विचार जाते हैं उससे हमें बाहर आना है। For every problem of yours, there is only one solution which has been given to you. हमारे हर एक समस्या के लिए सिर्फ एक ही मार्ग या एक उत्तर नहीं जो हम सोचते हैं या किसी ने हमें दिया हुआ है। We just concentrate on that problem. और हमारा पूरा लक्ष्य उसके ऊपर रहता है। So this is the background of that lame man. He's sitting with that, every background of it, he's sitting over there. और यही है सारा उस आदमी के बारे में जो वो बेसिदा पुल के उस किनारे पे बैठा है। And in this situation, Jesus comes into picture now. और अभी हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में कौन आता है, तो यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं। And Jesus doesn't go to any other person. और प्रभु यीशु मसीह किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाते, Only to this person. यही व्यक्ति के पास आते हैं। Friends, Jesus is also going to meet only one person. It might be you, it might be you, it might be you. Jesus is going to visit one person today, and it might be you. और प्रभु यीशु मसीह भी एक ही व्यक्ति को आज मिलेंगे, शायद वो आप हो सकते या हम हो सकते हैं। You must be with problems for so many years, maybe 1 year, 15 years, 20 years, but हम बहुत साल में 1 साल या 20 साल या 15 साल से समस्या में ही जाते रहेंगे। But today, Jesus is going to ask you one question. लेकिन आज यीशु मसीह आपको एक सवाल पूछ रहे हैं। Would you like to get healed? आप चंगाई पाना चाहते हो? Would you like to get healed? आप चंगाई पाना चाहते हो? Church, Jesus is asking you, would you like to get healed? और प्रभु यीशु मसीह आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्या आप चंगा होना पसंद करते हैं? Do you want to get out of the situation? ये परिस्थिति के बाहर आप आना चाहते हैं क्या? What is your answer? आपका जवाब क्या है? Is your answer like that person? वो जवाब उस व्यक्ति की तरह है क्या? I want to get into that pool. कि मुझे उस पानी में जाना है, I want to get operated. मुझे मेरा ऑपरेशन होना है, My children needs to be get married. मेरे बच्चे लोगों की शादी होनी है, I want to get a job of only 60,000 and above. मुझे ऐसी तनख्वाह चाहिए जो 60,000 से भी ऊपर है। Without that, my house cannot go ahead. मैं उसके बिना मेरा घर नहीं चल सकता है। Are you sitting with those solutions? ऐसे जवाब लेके बैठे हैं क्या? Are you sitting with those solutions? ऐसे जवाब लेके आप बैठे हैं क्या? Have you come here to get the answer of the solution that you have got, and God needs to say yes?
और ऐसे अपने जो आपको अच्छा लगता है ऐसे विचार के साथ आए हैं और वही आपके कान सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के से कि हाँ जो आपने सोचा है वैसा ही मैं करूंगा, ऐसे आप उसके पास से जवाब चाहते हैं क्या? Are you sitting with a solution with you? आज आप एक उत्तर लेके बैठे हैं क्या? I'm sorry to people of God. लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, हम सॉरी कहना चाहते हैं, That's not the solution. ये उत्तर नहीं है। God has another solution for you. लेकिन प्रभु कुछ दूसरा उत्तर लेके आया And है that is just Jesus. और एक ही वो जवाब है यीशु मसीह। None of your problems will be solved except the name of Jesus. हमारे हर एक समस्या का एक ही उत्तर है, वो है यीशु मसीह। Praise God. प्रभु को स्तुति हो। Praise God. प्रभु Now going ahead, now what do you think, like, why did Jesus ask him that particular question? फिर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को वो सवाल क्यों पूछा? As I told you in the introduction that he was a Jew, जैसे पहले बताया कि वो व्यक्ति एक यहूदी था, he must be knowing that a savior is going to be coming, वो जानता भी देगा कि मसीहा आ रहा है and he must be praying obviously that, और प्रार्थना भी करता रहेगा। and when Jesus comes, और जब यीशु मसीह आता है, when healing comes, जब चंगाई आती है, he is not aware of it. फिर वो उसको उसके बारे में ख्याल ही नहीं है, He can't recognize him. वो पहचानता भी नहीं है। We pray, people of God. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोग, We fast and read Bible. हम उपवास और प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं We know a lot many things of Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी बातें भी जानते हैं, We know a lot many things of God. हम परमेश्वर की भी बातें जानते हैं, But when situation comes, लेकिन परिस्थिति आती है we don't know God. फिर हम प्रभु ही नहीं जानते, We don't know Jesus. हम यीशु मसीह को नहीं जानते। We know only the one XYZ who is the commissioner of police. We ring him. हम एक ही जानते हैं वो जो पुलिस का कमिश्नर कौन है, Yeah, someone bigger position who is our church member. Immediately ring goes. फिर समस्या में क्या करते हैं, अगर पुलिस का सहायता लेते हैं लेकिन कलीसिया में एक बड़े ओहदे का आदमी रहेगा उसको फोन करते हैं, But we can't recognize Jesus. लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते। Now, when Jesus asked him a question, now, that layman also would be, surprised. I am been lying over here. You can see me lame, and what question are you asking? और जब यीशु मसीह ने उस लूले आदमी से सवाल किया तो वो लूला आदमी भी अचंभित हुआ रहेगा कि मैं 38 साल से यहाँ पे गिरा हुआ हूँ और ये कैसे आदमी मुझे ये सवाल पूछ रहा है। So many people around are sick, और इर्द गिर्द भी कितने लोग बीमार हैं and just you are asking me, do you want to be well? और ये मुझे सवाल पूछ रहे कि आप चंगा होना चाहते हो। But children of God, लेकिन प्रभु के बच्चे लोग, Jesus has for every question of Jesus of God is with a purpose. लेकिन प्रभु का हर एक जो सवाल है उसके पीछे एक उद्देश्य है। So he asked you, do you want to get well? वो एक सवाल पूछ रहे हमसे, आप सच में चंगा होना चाहते हैं? Why? Because Jesus wanted to understand whether he recognized him or not. क्यों प्रभु ने उसको ये सवाल किया? क्योंकि प्रभु जानना चाहते थे कि उस व्यक्ति ने प्रभु को पहचाना है क्या नहीं, Or does he has a zeal to get up and go? और उसमें उतना आवेश है कि उठ के चलने के लिए, Or he's very comfortable with that comfort zone of his, क्या वो परिस्थिति में वो अब खुश है with his friends उसके दोस्तों like him? उसकी तरह? But Jesus want to understand, has he really understood me? Does he have the zeal to get up and go? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि सच में ये व्यक्ति ने मुझे पहचाना है, सच में वो खुद के जीवन के लिए चंगाई चाहता है। And Jesus wanted his focus, his attention towards him. और प्रभु चाहता था कि उसका लक्ष्य उसकी ओर केंद्रित हो जाए। And the answer was, और जवाब क्या था? I can't do it. कि मैं नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because this is the thing that the pool, whenever the pool has been shaken, I cannot go over there. तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने पूछा आप चंगा होने चाहते हो? Today तो also- वो व्यक्ति ने क्या कहा?
नहीं, मैं नहीं हो सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता हूँ? कि ये वजह है कि मुझे उस पानी में डालने के लिए कोई नहीं है। ऐसे उसने अनेक उसकी ओर से ऐसे उसके कारण दिए हैं, उसकी हालत बताई है। Didn't Jesus knew this solution for his problem? प्रभु नहीं जानते क्या? और अगर उसकी चंगाई का एक ही मार्ग है कि वो उस पूल में जाना, क्या प्रभु नहीं जानते थे? Jesus asked him, and the answer was, I can't. लेकिन प्रभु ने उसको एक सवाल पूछा और तुरंत जवाब क्या आया? कि मैं नहीं कर सकता। Today Jesus is asking you, do you want to get healed? इसलिए आज भी प्रभु हमसे वही सवाल पूछ रहे हैं, सच में आपको चंगाई चाहते हैं क्या? Do you want to get out of this financial crunch? कि आप आर्थिक परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं क्या? Do you want to get out of this situation? आपकी परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं क्या? What is your answer? आपका जवाब क्या है? I can't. कि मैं नहीं कर सकता। Why? क्यों? Because I have less finances for my operation. क्योंकि मेरे पास कम पैसे ऑपरेशन के लिए। I have been applying for so many jobs, but I can't get a good job. मैं बहुत अच्छे काम के लिए तो अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। And everything I did, I went to so many people. और मैंने मैं जितना हो सकता हूँ वो सब बातें की है, बहुत लोगों के पास गया भी हूँ, But there's no solution. लेकिन मेरे लिए कोई भी सही मार्ग नहीं और कुछ उत्तर नहीं आ रहा है। 1 year, 15 years, 20 years, I've been lying in this situation. ऐसी परिस्थिति में 1, 2, 3, 4, 15, 20 साल मेरी ऐसी हालत है। And to which, what does Jesus reply? और इसका क्या जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया? Stand up and start walking. प्रभु का पास क्या उत्तर था? उठ जाओ और चलो। And he did it. और वो हो गया। It's so very simple, people of God. कितनी सीधी बात थी। 30 years he was lying over here. 38 साल उस अपाहिज परिस्थिति में उस पूल के पार सोया हुआ व्यक्ति वहां पे बैठा था, लेकिन प्रभु ने सिर्फ उसको कहा, उठो और चलो। One word in his life and he was transformed. एक प्रभु का शब्द और उसके जीवन में आया हुआ बदलाव। Friends, one word in your life एक शब्द प्रभु का हमारे जीवन में and your life will be changed. और हमारा जीवन बदल जाएगा। Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई कमी घटी Have you नहीं। tried this solution? ये आपने मार्ग चुना है क्या? उसका अनुभव लिया है क्या? Have you tried this word? One word in my life and my life will change. कि प्रभु का एक शब्द, एक वचन और मेरा जीवन बदलने वाला है। Or be still with those prayers, with the vicious circle, with that thing like, क्या फिर भी हमारी सोच में वही गोल 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 हमारे विचार जो घूमते हैं और हमारे सोच के अनुसार कैसा होना चाहिए वैसे में अगर हम बैठे हैं क्या? in my poverty, only the word, Lord is my shepherd. मेरी गरीबी में एक ही वचन है मेरे लिए, प्रभु मेरा चरवाहा है। In my sickness, with your stripes I have been healed. और जब मैं बीमार हूँ, एक ही वचन, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। So if only a word can heal that lame person, अगर एक शब्द प्रभु का उस अपाहिज व्यक्ति को चंगा कर सकता है, what are you waiting for today now? तो आज आप किस बात के लिए रुके हैं? One word in your life and your life will change. एक प्रभु का शब्द आपके जीवन में और आपका जीवन में एक पूरी तरह का बदलाव। It won't take 10 years, it won't take 15 years, it will take a fraction of second. उसके लिए प्रभु का एक शब्द का जो चमत्कार है, उसके लिए 15 साल या 20 साल नहीं लगने वाले। उसके लिए प्रभु का वचन और एक क्षण मात्र में बदलाव आने वाला है। Church, as I said before also, जैसे पहले भी कहा भाई ने, God is asking you one question today.
प्रभु मसीह एक ही सवाल पूछ रहे हैं, Do you want to get healed? आप चंगा होना चाहते हैं? Do you really want to get healed? आपको सच में चंगाई चाहिए? Or really you want to stay in that thing for next few more years? और जो भी आज आपकी परिस्थिति है उसमें ऐसे ही और थोड़े साल बिताना चाहते हो क्या? No. What is your तो answer for it? आपका जवाब क्या उसके लिए? What is your answer for it? आपका जवाब क्या उसके लिए? Now going forward, आगे बढ़ते हुए now this man is been healed now. अभी एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त हुआ, Where did he get his healing? कहाँ पे उसको उसका चमत्कार मिला? In this situation, उसकी परिस्थिति में, outside the church. कलीसिया के बाहर। But now after this, where does he go? और कलीसिया के बाद उसको चमत्कार मिलने के बाद वो कहाँ पे जाता है? In the temple. फिर वो मंदिर जाता है, In the temple, और मंदिर में he gets a chance to converse with Jesus. और मंदिर में वो किससे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। And what does Jesus tell him? और यीशु मसीह क्या कहते हैं? Jesus doesn't tell him, "Oh, praise the Lord! Oh, wow, nice, good." What does he say? प्रभु मसीह उनको देखते अच्छा ऐसे बात करते क्या? नहीं। Can just someone read? अभी पढ़ेंगे वचन, क्या बोलते हैं प्रभु मसीह उस समय? वचन 14 Yeah. वचन। Later Jesus found him at the temple and said to him, See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Thank you. हिंदी में या मराठी में? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Thank you. Praise the Lord. So he was healed outside the temple, उसको चंगाई कलीसिया के बाहर मिली, but the freedom from his sins was where he got it? लेकिन पाप से छुटकारा कहाँ पे मिला? In the temple. प्रभु के मंदिर में। Friends, our church or the temple of God is not for signs and wonders only, तो इसलिए प्रभु का घर है, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं but है। it has to show your sins. वो उसके लिए जहाँ पे वो हमें अपना पाप दिखता है। Signs and wonders will just give you a physical, change or something like this. चिन्ह और चमत्कार शारीरिक रीति से हमें चंगाई देंगे, But freedom from your sins will lead you to eternal life. लेकिन पाप से छुटकारा आपको अनंत जीवन के ओर लेके जाने वाला है। And where will you get that? और वो कहाँ पे आपको मिलेगा? In the church. प्रभु के मंदिर में। So friends, तो भाइयों बहनों, if you feel like you have been gone away from God, अगर आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के पास से आप दूर हट गए हैं, you have sinned, आप पाप किए हैं, you are away from God, आपके प्रभु के सानिध्य से दूर हट गए हैं, so the right place is तो सच्ची जगह कहाँ पे है? church. प्रभु का मंदिर। And when the pastor tells you about your sins, और जब पास्टर आपको आपके पापों के बारे में बताते हैं, they are not against you. तो वो आपके खिलाफ नहीं है, They don't want to put you down, वो आपको नीचे गिराना नहीं चाहते हैं, but they want to get you towards that eternal life. वो चाहते हैं कि हमारा रास्ता सार्वकालिक जीवन की ओर बढ़े। So people of God, तो प्रभु के लोग don't go behind those signs and wonders, तो चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत जाओ, but come to the church. तो लेकिन कलीसिया में आओ, There God will show you your sins. जहाँ पे प्रभु आपके पाप आपको बताएगा। If there is signs and miracles in St. Mary's ground, अगर सेंट मैरिज ग्राउंड पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, it will be overflown. और लोग बहुत आएंगे वहाँ पे और चमत्कार भी होंगे। But in the church which shows your sins, लेकिन जो कलीसिया आपको आपकी पाप बताते हैं, chairs will be empty. तो कुर्सियाँ खाली रहेंगी वहाँ पे। In St. Mary's ground, सेंट मैरिज के ग्राउंड में people will stand for hours together to get to see the signs and wonders. लोग घंटे घंटे वहाँ पे खड़े रह के चिन्ह चमत्कार देखेंगे, But they will not come to the church लेकिन to get them free from sins. कलीसिया में नहीं आएंगे पाप से छुटकारा पाने के लिए।
And over here, Jesus gives him a solution for his eternal life, not only his physical life. यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु सिर्फ शारीरिक चंगाई का एक जवाब नहीं देता है, लेकिन अनंत काल का जीवन पाने के लिए वो उसको मार्ग बताता है। Friends, Jesus is speaking to each one of us today. आज प्रभु हमसे बातें कर रहा है। For every problem of yours, हर एक आपके समस्या के लिए Jesus has the solution. प्रभु ही जवाब है। Shall we close our eyes? हम आंखें बंद करेंगे, Shall we close our eyes? हम अपने आंखों को बंद करेंगे Let's understand where I have gone wrong. और समझेंगे और जांचेंगे खुद को, प्रभु में कहाँ गलत किया हूँ, कहाँ गलती मेरी हो गई है। I have been in this situation for so many years. मैं ये परिस्थिति में कितने साल से हूँ। I have known so many solutions for my problem. और मेरे जो समस्या के लिए अनेक ऐसे जवाब मैंने सोच रखे हैं, But nothing is working out. लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा है। Today, आज I have come to your throne of grace. तेरे दया के आसन के पास आया हूँ। I want to answer your question. Do you want to get healed? आज भाई पूछे, सच में आप चंगाई पाना चाहते हैं क्या? Jesus is asking you, do you want to get healed? आज यीशु मसीह यही सवाल पूछ रहे हैं, आप चंगाई पाना चाहते हो क्या? Really, do you want to get healed? सच में आपको चंगाई पाना चाहते हो क्या? Not with your solution, आपके के पास जो उत्तर है उसके साथ नहीं, but only one word of God. सिर्फ प्रभु का एक शब्द, Repent, for that word is going to be coming. तो पश्चाताप कीजिए, यही वो शब्द है। God is speaking with each one of us sitting over आज here. हम सबसे वही बात कर रहा है। And if you repent, अगर आप पश्चाताप करेंगे and if you cry to God, और आप प्रभु के सामने आंसू डालेंगे, your solution is there. आपका जवाब है। You will see the solution. आप देखेंगे उत्तर You will को, testify the solution. साक्ष्य देंगे। You will just not clap for others' solutions. आप सिर्फ दूसरों लोगों के लिए ताली नहीं बजाएंगे, For other people's testimonies, you will not say praise the दूसरे Lord. साक्ष्य लोगों के लिए प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, But you will testify yourself. लेकिन आप एक खुद साक्ष्य लेके आएंगे। And in the days to come, आने वाले दिनों में full 1 hour there will be only testifications. और यहाँ पे आप सिर्फ साक्ष्य और साक्ष्य सुनेंगे। Let's pray, people of God. हम प्रार्थना करेंगे, Let's go to the God तो प्रभु